غلام جو رہا پہلے انسان، اور وہ کالا بھی ہے، حبشی ہے وہ ہے، اور وہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے، تو مطلب اسلام اس حد تک مطلب جو ہے برابری کا دھرم کرتا ہے. جیسے تو ہیلو گائز، میرا نام شیم، میں نام ہے انو. تو اب سب لوگ جو ہے وہ مکہ جا چکے، اب دیکھتے اب آگے کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ایپیسوڈ 16 ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو سٹارٹ. آپ کے بھائی الولید جو نبی کے ساتھ عمرہ کرنے یہاں آئے ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے یہ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، میں اس بات سے انتہائی حیران ہوں کہ آپ ابھی تک اسلام سے دور ہیں. جیسا کہ میں جانتا ہوں آپ نہایت ہی عقل مند ہیں، تو آپ کب تک آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس سچائی سے دور رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ خالق کہاں ہیں؟ میں نے ان سے کہا اللہ انہیں ہمارے پاس لے کر آئے گا. آپ نے فرمایا کہ ان کی جیسی قوتوں والا انسان زیادہ دن جاہلیت میں نہیں رہ سکتا. اگر وہ اپنی اس ہوشیاری اور تجربے کا استعمال مسلمانوں کے لیے اور مشرکین کے خلاف کرتے ہیں تو اس سے انہیں ثواب و دارین حاصل ہوگا. ہم انہیں غیروں پر زیادہ اختیار دیں گے. بھائی، یہی صحیح وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور وہ ثواب کمانے کا جن سے آپ محروم رہ گئے ہیں. واللہ اب سب کچھ صاف ہو گیا ہے. اب تھوڑا تھوڑا صاف تو ہو ہی رہا ہے. کون کس ڈائریکشن میں مطلب جانے والا ہے. یہ کیکر کا پیڑ ہے. خالد، واللہ آپ تو امر ہیں. آپ اور یہاں امر کہاں جا رہے تھے؟ آپ تو حبشہ گئے ہوئے تھے، پھر اس طرف کیسے آنا ہوا؟ آپ جواب دو، یہاں کیوں آئے ہو؟ یا ابا عبداللہ، واللہ اب سب کچھ صاف ہو گیا ہے. وہ انسان واقعی نبی ہے. میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں. آؤ. واللہ میرا ارادہ بھی بالکل وہی ہے. کیا ہم نے دیر نہیں کر دی امر؟ ہم نے خود کو عذابوں میں مبتلا کر لیا ہے. میں نے لوگوں سے نبی کی روایت سے سنی ہے، اسلام میں داخلے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں، وہ کبھی دیر صفوان اور نہیں اکرمہ ہوتی. کا کیا ہوا؟ وہ اب تک اپنے خاندان کو نہیں بھولے اور ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. آپ کو دیکھ کر مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہ ہوئی ہوگی سوائے رسول اللہ کی. ہمیں آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی لگ گئی تھی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. خالد اپنی ذہنیت اور عقل مندی سے اسلام کو اور آگے لے کر جائیں گے. مرحبا یا ابا سلیمان.
या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूल अल्लाह। कबूल कर लिया, कलमा पढ़ना पड़ता है ना। आप तो जानते ही हैं मैं कैसे इस्लाम के खिलाफ हक से मुंह फेर कर उन जंगों में खड़ा था। आप अल्लाह से मेरी मग़फ़िरत फरमाते। या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। मेरी भी वही गुजारिश है जो खालिद ने की है, हमारे लिए दुआ करें। मोहम्मद के मुहाजिर होने के बाद से हमें इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ जितना खालिद और अम्र के जाने से हुआ है। वो कुरैशी फौज का बेहतरीन सिपह सालार था। अब हमारी तादाद सिर्फ इतनी रह गई है कि एक ऊंट का गोश्त भी हम सब लोगों के लिए काफी हो। अब तो ऐसी हालत हो गई है जैसे एक लोमड़ी अपने बिल में छुपी हो। एक ऊंट का मांस भी सारे खा सकते, इतने कम रह गए। मक्का के सारे लोग मोहम्मद को मानने लगेंगे। तो अगर ये सब होने ही वाला है तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर इतना ही डर है तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? मेरे बाप की मौत का बदला और वो नफरत उसे मैं दबा नहीं सकता। मैं भी यही महसूस करता हूँ। हाँ, कैसा लगेगा कि अगर मैं मुसलमानों के दरमियान हूँ और वो कहें कि ये इकरमा बिन अबू जहल है। अगर हम मोहम्मद के दीन में दाखिल हुए, जैसे हमने बाप दादा को दोबारा मार दिया, जैसा कि हमने उनकी जात, दीन और अमल को छोड़ दिया, फिर हम करेंगे कुरान पढ़ेंगे जिसमें हमारे बाप दादाओं के खिलाफ लिखा हो। बुरा हो खालिद का तो खालिद क्या करेगा? उसी कुरान को पढ़ेगा जिसमें उसके वालिद के खिलाफ लिखा हो, या फिर वो हिस्सा छोड़ देगा? बताओ सालिम, क्या कुरान का कोई हिस्सा अभी बाकी रहा है? नहीं? फिर वही पढ़ो जो मैंने पूछा है। लेकिन कुरान में तो बहुत कुछ ज्यादा है, आप यहीं से क्यों शुरू करना चाहते हैं? मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं और जब तक मैं ये ना करूं मेरे दिल से जाहिलियत का असर खत्म नहीं होगा। कौन से पारे की बात बता रहे हैं? मेरे को बता देना, पढ़ के मुश्किल है मगर ये अल्लाह का कलाम है और आपको तो कुरान ज़बानी हिफ्ज़ है, जैसा रसूलुल्लाह ने आपके बारे में फरमाया है। ज़बानी कुरान। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तो आप इसे पढ़ें और मैं आपके साथ साथ इसको दोहराऊंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا कौन सा पारा وجعلت له है? مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا। जहां तक माल की बात है, मैं मक्का में ही उसे पीछे छोड़ आया हूं और इन आयत के हिसाब से मैं और मेरा भाई अपने वालिद के खिलाफ गवाही देंगे। आगे पढ़ो सालिम, आगे पढ़ो। ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف इन्होंने अभी قدر इस्लाम कबूल किया है ना, ثم नظर ثم عبس وبسر वे कंफ्यूज है कि मतलब क्या ثم लिखा है। نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر कि कयामत के समय तो गवाही देनी पड़ेगी ना। إن هذا إلا قول البشر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر कयामत की शायद बातें होगी। سأصليه سقر سأصليه سقر। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे अल वलीद। لا إله إلا الله محمد रसूलुल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह आपको ठीक कर देगा।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आपको रसूल अल्लाह के साथ देखने तक जिंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। لا إله إلا الله محمد رسول الله. रसूल अल्लाह को मेरा सलाम कहना। أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. भागो ये कौन है? भागो, बकर कबीले वालों ने हमला कर दिया, बकरी कसने वालों ने सत्ता कर दिया। किसने बकर कबीले को आदमी और असला मुहैया कराए और अलवतीर में खुजा कबीले के लोगों पर हमलावर होने में उनकी मदद की? किसने? क्या तुमने किया सफवान? मैं क्यों इसी ने किया होगा। तो किसने? क्या तुमने इक्रिमा? भला मैं क्यों करूंगा? तो कौन है? अब लोगों को पता चल चुका है कि कुरैश में से ही किसी ने गद्दारी की है और बकर कबीले के साथ मिलकर इस बुरे काम को अंजाम दिया है। हुदैबिया के सुलह के हिसाब से बकर कबीले वाले अब हमारे साथी बन गए हैं और खुदा कबीले वाले साथी है मोहम्मद के। और तुमने सुलह को तोड़ा है और अब खुदा मोहम्मद की मदद मांगते हैं तो उनकी मदद जरूर करेगा। तो बताओ तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? अल्लाह के वास्ते मैं मोहम्मद से मदद मांगने आया हूँ। आपसे दरखास्त है, लंबे समय तक हम आपके साथ ही रहे। बड़े होने के लिहाज से जब आप लोग जवान थे हम आपके वालिदैन की तरह थे। फिर हमने इस्लाम कबूल किया और तब से आपका साथ नहीं छोड़ा। उस अल्लाह के वास्ते हमें आपकी भरपूर मदद चाहिए। अल्लाह के बंदो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। रसूल अल्लाह, हमें वाजी तौर पर आपका साथ चाहिए। इन कुरैशियों ने आपके साथ किए मुआहदे की बेहुरमती की है और आपसे किए मुआहदे को तोड़ दिया है। फिदा में हमारी मुखबरी के लिए लोग खड़े किए थे। धोखे से अलवतीर में हम पर हमला किया और उस वक्त उन लोगों को कत्ल किया जब वो नमाज में मुब्तिला थे। आपकी दरखास्त को सुन लिया गया है, तो इत्मीनान रखें। जैसा रसूलुल्लाह ने आपसे कहा है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अम्र इब्न सालिना।
या अबा बकर, हम जानते हैं कि मोहम्मद के दिल में आपका बड़ा आला मकाम है, तो सुलह रहमी की खातिर क्या आप उनसे दरखास्त करेंगे कि वो हमारी इस गलती को नजरअंदाज कर दें और मुआदे की इस मुद्दत को आगे बढ़ा दें? मैं ये नहीं करूंगा। तुम अल्लाह के दुश्मन, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह से मैं बात करूं? अगर रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दे तो अभी के अभी मैं तुम्हारा यहीं कत्ल कर दूं। अगर मुझे लड़ने के लिए इस रेत के सिवा कुछ भी ना मिला तब भी मैं तुमसे लड़ूंगा। अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे और हमारे बीच अल्लाह ही फैसला करेगा। या अली, आप तो हमारे करीबी रिश्तेदार हो और मैं आपके पास बड़ी उम्मीदों से आया हूं और मैं यहां से खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहता। आप मोहम्मद तक मेरी दरखास्त पहुंचा दें। वल्लाही अबू सुफियान, रसूल अल्लाह इस बारे में अपना फैसला कर चुके हैं और हम में से कोई भी इस बारे में उनसे बात नहीं करेगा। तो आप अपने बेटे से नहीं कहोगे कि सुलह का ऐलान कर दे तो आखिर दुनिया तक ये अरबों का सबसे बड़ा सरदार कहलाया जाएगा। लोगों के बीच सुलह का ऐलान करने के लिए मेरा बेटा भी बहुत छोटा है और इसके अलावा कोई भी रसूलुल्लाह के खिलाफ जाकर किसी की मदद नहीं करेगा। या अबल हसन, मेरे लिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, मुझे कोई तो मशवरा दो। वल्लाही मुझे ऐसी किसी चीज का नहीं पता जो तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो, मगर तुम अपनी कौम के सरदार हो, अपने लोगों के बीच सुलह का ऐलान करो और अपने घर जाओ। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से कुछ फायदा होगा? वल्लाही मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। है लोगों, मैं अपने लोगों के बीच सुलह और अमन का ऐलान करता हूं। सुलह का ऐलान कर रहे हो? क्या इसे मोहम्मद ने भी माना है? मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिला? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। आप कैसे अपने लोगों में अमन की बात कर रहे हैं जबकि उन लोगों ने हमारी इस पेशकश को ठुकरा दिया है? क्योंकि हम लोगों ने गलती की है। वल्लाह, अली ने आपके साथ खेल खेला है और आपको कुछ भी हासिल ना हुआ। अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई इससे बेहतर कर सकता है तो वो आगे आए। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है मोहम्मद एक बड़े लश्कर के साथ यहाँ आने वाले हैं और हमारा सामना उनसे जल्द होने वाला है। बाकी अरब कबाइल भी उनके फर्माबरदार होंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने फौजी दस्ते को वहाँ भेजें, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसा तुमने कहा अबू यजीद कि वो एक बड़ी फौज लेकर यहाँ आएंगे और बाकी अरब कबाइल भी उनके साथ होंगे, तो क्या हम उन सबसे लड़ने की कुव्वत रखते हैं? अब आप बूढ़े हो चले हैं अबू सुफियान। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो हिंद, हमारा वक्त अब गुजर चुका है। इस अजीम मुल्क का दारोमदार अब मोहम्मद के हाथ में है। तो क्या आप उनके मातहत काम करेंगे? अगर आपको जिंदा रहने दे तो वो जैसे चाहे आपका इस्तेमाल करेंगे। वो आपको हुक्म देंगे और आपको मानना पड़ेगा, या आपको अपने किसी साहबा के हवाले कर दे जो आपका गुलाम हुआ करता था मगर अब आपको हुक्म देगा। वो लोगों की हैसियत जानते हैं। तो अगर आप उनकी इताअत करते हैं तो वो आपको इब्ने अबी कुहाफा से बेहतर मुकाम देंगे, या इब्ने हंतमा से, या उमर इब्ने खत्ताब से, या उमैया इब्ने खलफ के गुलाम बिलाल इब्ने रबाह से। बराबर ही है। अगर आपको इनके बराबर का भी दर्जा दे तो ये आपके लिए बेइज्जती है। अबू सुफियान, कुरैश और किनाना का सरदार, एक आम आदमी की जिंदगी जिएगा। खुदा का शुक्र है ये सब देखने के लिए मेरे अब्बा जिंदा नहीं है। सही कहा। अगर कौम ने तुम्हारे अब्बा की बात सुनी होती तो आज हमारी हालत ऐसी ना होती। उन्होंने कहा था मोहम्मद का फरमान अरबों तक पहुंचने दे, अगर अरब उनका कत्ल करते हैं तो तुम्हारी मुश्किलें खत्म। अभी भी नहीं सोच रहे। मोहम्मद जीतते हैं तो उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। जाओ अपनी कौम को ये बात बोल दो और चाहो तो इसका सारा इल्जाम उतबा के सर रख देना। मगर जब सही वक्त आया तो उन्होंने इज्जत के साथ मरना पसंद किया। हाँ, अबू सुफियान के साथ उनका क्या मुकाबला। वल्लाही अगर आपने घुटने टेक दिए और मोहम्मद से ना लड़े तो आप बदतरीन खाविंद कहलाएंगे।
सारी तारीफ अल्लाह के लिए ही है जिन्होंने इन्हें जिल्लत में मुब्तला किया और हमें इज्जत बख्शी। बस करो उमर, अगर ये आदि कबीले से होते तो तुम ऐसा हरगिज ना कहते, लेकिन आप जानते हो कि ये अब्द मनफ कबीले से हैं। रुक जाए अब्बास, वल्लाही जब आपने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बने तो मुझे इतनी खुशी मिली कि अगर मेरे अब्बा अल खत्ताब भी इस्लाम लाते तो शायद मुझे इतनी खुशी न होती। इसकी कोई और वजह नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह के नबी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप उनके चचा हैं। आप कितने रहीम, रहमदिल और करीम हैं। हाँ, मैं जानता हूं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। वल्लाही अगर अल्लाह के साथ कोई और शरीक होता तो अब तक मुझे कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचा देता। और तुम गवाही देते हो कि ये अल्लाह के रसूल हैं। जहां तक कबूल कर लिया बात है, अभी मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुआ हूं। क्या कहा? ये कबूल करो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं और मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं। अब सब कुछ साफ हो चुका है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओ, बोल दिया। दोनों चीज मानना जरूरी है कि नहीं? अगर रसूल नहीं मानोगे तो फिर कुरान भी नहीं मानेंगे। मतलब कह तो रहे कि खुदा एक है, मगर रसूल भी तो मानना जरूरी है और शहादत भी दी है। शहादत भी देना जरूरी है। वल्लाही ये उसने सिर्फ खौफ में किया है। हम उसके दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि वो सच्चा है या नहीं। जो जाहिर है हम उसी पे यकीन रखते हैं। हम सलामती के साथ मक्का में दाखिल होना चाहते हैं और इसका फैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं। वाह, मुझे मक्का की खुशबू आ रही है। सब्र रखो भाई, बहुत जल्द हम मक्का वापस अपने घर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं सुहेल इब्ने अम्र के हाल जानना चाहता हूँ। सफवान और मेरा भाई इक्रिमा क्या कर रहे होंगे? वो कर भी क्या सकते हैं जब अबू सुफियान इस्लाम अपना चुके हैं। मुझे डर है कहीं जिद में कोई गलत कदम न उठा लें। अगर उनके दिल में जरा भी शक व सुबह हुआ तो वो खौफ के मारे या मुनाफिक के तौर पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। ए लोगो, तैयार हो जाओ। जैसा रसूलुल्लाह का हुक्म है अपनी अपनी जगह ले लो। चलो। ऐ कुरैश के लोगो, मोहम्मद एक बड़ी फौज लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे जान का अमान है। आज मुझे एहसास हुआ आप कौम के कितने बुरे सरदार हैं, कितने बुरे सरदार हैं आप। अब कौन कुरैश का बदला लेगा? इस बुज़दिल आदमी को मार डालो। इसने आपको धोखा दिया और तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के हवाले कर दिया। इस औरत की बात पर ध्यान ना दो और मेरी बात को ध्यान से समझो। वो एक बड़ी फौज लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे जान का अमान है। अल्लाह तुम्हें गर्क कर दे, हम सारे कैसे तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। जो अपने घर के दरवाजे बंद रखेगा उसे अमान है। जब लोग अपने घरों में ही महफूज है तो वो तुम्हारे घर में क्यों आएंगे? फख्र के लिए मोहम्मद से ये सर्फ हासिल किया। इन्होंने अपनी शर्मिंदगी और बुज़दिली छुपाने के लिए और आप लोगों को मुकाबले में रखा, ये दिखाने के लिए कि ये आज भी सरदार हैं। और जो मस्जिदों में दाखिल होगा उसे भी अमान है। घर चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या सरदार है क्या अबू सुफियान?
अबू सुफियान, ये तो मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मन थे और आज अपनी ही मौत से डर रहे हैं। वो बदला नहीं है, वो एक बड़ा कारोबारी है। चाहे अमन हो या जंग, उसे चाहिए ज्यादा मुनाफा और कम नुकसान। ऐसे लोग ज्यादा जीते हैं, जबकि मेरे अब्बा जैसे लोग जो कभी समझौता नहीं करते, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं अभी समझौता नहीं करूंगा और मैं भी। हम लड़ेंगे, हम अपनी इज्जत की खातिर इनसे लड़ेंगे। मेरे लोगों का भी ऐसा ही मानना है और मेरे लोगों का भी। मैं भी। तो जो तुम्हारे पास असला मौजूद है उससे हमारी मदद करो। मैंने इसी पल के लिए बचा के रखे थे। जब यहाँ से गए थे, जब कितने लोग थे? 100 से कम लोग हो गए जब ये गए हैं ना। मदीना जब गए 80 या 90 लोग हो गए, और अब देखो अपने घर आ गए हैं। कितने साल में आए होगे? 9-10 साल में आए, बता देना एक बार। शायद 9-10 साल गुजर गए होंगे। और सारी जो है कुरान जो नाजिल हो चुकी है, ठीक है, या फिर कुछ बची है, वो भी बता देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
اب جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور حق سامنے آ گیا ہے. حق سامنے آ چکا ہے. الباطل ان الباطل كان زهوقا. کیسا ٹائم لگا اللہ اکبر. کیا ہوا؟ مکہ. کیسے چڑھا جاتا اجان. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. مکہ کے لوگوں، مکہ کے لوگوں، باہر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں ملو، تم لوگ محفوظ ہو. مکہ کے لوگوں، رسول اللہ سے ملو. مکہ کے لوگوں، رسول اللہ سے ملو. مکہ کے لوگوں، رسول اللہ سے ملو.
सब खत्म हो गया अबू सुफियान। दिल हाँ, निकाल सब के खत्म खाया हो था ना चुका है हिंद। वल्लाही वो सबसे ज्यादा नरम दिल और रहम करने वाले हैं। ये दूसरे में माफी कैसे मांगू उस चीज वल्लाही वो की लोगों से दिल। मुखातिब हुए और फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से जाहिलियत का पति गुरूर ने निकाल किया है, दिया अभी है, वाइफ जिसकी ने वजह से गुरूर किया करते थे। ये इंसान आदम की औलाद है और आदम को मिट्टी से बनाया गया। कुरैश के लोगों, मैं तुमसे कैसा सलूक करूं? कहा, आप हमारे बाइज्जत और करीम भाई हैं और हमारे बाइज्जत भाई के बेटे हैं। फरमाया, जाओ, तुम सबको माफ किया। तो आज से हम मोहम्मद के आजाद किए हुए लोग हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम पीछे रह गए जबकि लोग हमसे आगे निकल गए। वो बहुत रहीम और करीम है और हम अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। क्या मर्दों ने बैत ली? कल वो औरतों की बैत कबूल करेंगे। जो मैंने उनके चचा हमजा के साथ किया, उसके बाद भी जो भी सलामती और बैत के लिए उनके पास जाता है वो किसी को इनकार नहीं करते। उन्होंने मेरी बैत कबूल की है तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? आपका दिल अपने बुजुर्गों के दीन से भर गया है अबू सुफियान। हाँ, मेरे दिल में अब कुछ बाकी नहीं, और अगर वो हक होता तो मुझे कोई फायदा जरूर देता। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से इस दीन से मुतासिर नहीं हूं। हाँ, मैं अब मुसलमान हूं, लेकिन इतने सालों से जो दीन मेरे दिल में था उसकी जद्दोजहद आगे भी मेरे दिल में रहेगी। एक लंबा अरसा मैं इस जिंदगी के साथ गुजार चुका हूं और अब बहुत कम पर उनके अंदर नफरत इतनी भरी हुई है। और जब मैं खुद को मक्का में देखता हूं तो मुझे मेरे गुजरे वक्त के साए नजर आने लगते हैं और तमाम गुजरी जिंदगी मेरे सामने आने लगती है। वो लोग عتبة بن ربيعة، أبو الحكم، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، العاص بن وائل، أبو طالب، وعمر بن الخطاب، سفير قريش ومصارعها والمدافع عنها، जो अपने हक के लिए पानी लाता है और आग जलाता है। खालिद इब्न अल वलीद, कुरैश का सिपह सालार और एक जाबाज सिपाही, और अम्र इब्न अलास, कुरैश का सबसे होशियार आदमी, और मैं खुद अबू सुफियान। سخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، जिसके हाथ में कुरैश की सारी बागडोर थी। तो बहुत ही मतलब भारी एपिसोड था, ठीक है, ये बहुत इमोशनल एपिसोड था कि इतने सालों बाद, शायद 9 या 10 साल काफी साल गुजर गए उनको, ठीक है, गए, और अब जो जबकि सबने कबूल कर लिया इस्लाम, अब वे लोग वापस आए हैं, ठीक है। उनकी वाइफ को थोड़ा है, सबने कर लिया, वो थोड़े ही लोग रह गए। उनकी वाइफ थोड़ा सा वो है, क्योंकि लोग छोड़ नहीं पाते लोग, ठीक है, बिल्कुल धस जाते हैं ना, जैसे कहते हैं, ठीक है। तो उनको भरोसा है, लेकिन अब वो भी अपने जो है बुतों को देख रही है कि इसने भी कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया। तो कल जैसे उन्होंने बताया कि सब औरतों की बारी है, उनसे बातचीत होगी कि वो कबूल करेगी, क्या होगा, ठीक। फर्स्ट अजान दी है एक बार और हुआ चढ़कर, जब चढ़ गए एक बार वहाँ पे जाके हुआ था, जो हम कह रहे थे वहां नहीं, वो तो फर्स्ट मस्जिद बनाई थी, वो तो फर्स्ट मस्जिद बनाई थी, जाके वहां पे उन्होंने दिया। लेकिन ये मदीना के ऊपर, मक्का के ऊपर चढ़ के, समझ रहे हो, नहीं काबा के ऊपर चढ़ के,
کعبہ کے اوپر چڑھ کے انہوں نے فرسٹ ٹائم دی نا, تو یہ آئیکونک ہے نا. اور اس میں دیکھو یہ ہے کہ ایک غلام جو رہا پہلے انسان, اور وہ کالا بھی ہے, حبشی ہے وہ, ہے, اور وہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے, تو مطلب اسلام اس حد تک مطلب جو ہے برابری کا دھرم کرتا ہے. جیسے تو ان کو جیسے کہ مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کو ایک سینہ چوڑا کر کے وہ جیسے ایک فخر ہوتا ہے کہ ہم ان سے اونچے ہیں, ہم سب دھرموں سے اونچے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم سارے کے سارے ہم مسلمان ہیں تو ہم ان سے اونچے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہ ہوتا ہے. کرسچنوں کو بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کرسچن جو ہے جو سب سارے دھرموں سے اونچے ہیں. لیکن جب ہندوستان میں آتے ہیں تو ہندوستان یہ ہندو یہ نہیں کہتا کہ ہم سب دھرموں سے اونچے ہیں. ہندوستان اور اس سے نیچے جا کے بولتا ہے کہ ہم آپس میں بھی ہم پنڈت ہو گئے وہ ہم اس سے ہم اونچے ہیں, چھتری ہو گئے وہ کہتے ہیں ہم نیچے والوں سے اونچے ہیں. آپس میں اتنا ہوا کہ ہم اونچے ہیں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں سب برابر ہے لیکن اور دھرموں سے سب اونچے ہیں. کیونکہ دیکھتے ہیں اب سب لوگ جو ہے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, مکہ سب لوگ آ گئے, اب کیسے رہتے ہیں, کیا رہن سہن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کا کیا رہن سہن ہوتا ہے وہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے. اور میرے کو آپ بتانا کہ اب تک ہم کو حضرت عمر کی اتنی کچھ وہ خاص دکھی نہیں ہے چیز, ٹھیک ہے. جیسے کوئی ہم سے پوچھ لے کہ حضرت عمر کے بارے میں بتاؤ تو اتنا کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے. ہمیں تو پوری اسٹوری بتانی پڑ جائے گی, مطلب جیسے نہیں, جیسے یعقوب نبی ہو گئے, ان کے بارے میں پوچھے تو ہم کتنا کچھ بتا سکتے ہیں, یا پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنا کچھ بتا سکتے ہیں, یا نبی ہو گئے یا پیغمبر ہو گئے یا اور کوئی ہو گیا, ان کے بارے میں ہم کتنا بتا سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر ہے, ان کا ہم کو موٹا موٹا ایک دو چیزیں بس یاد ہے. انہوں نے ایک بار اسلام جب قبول کیا اس کے بعد سے تو مطلب وہ جیسی چیزیں ہو رہی ہے نارمل جو صحابہ کر رہے ہیں وہی چیز وہ کر رہے ہیں. مطلب لیڈ ایک چیز کرنا وہ ہم کو دکھا نہیں ابھی تک, ٹھیک ہے. اور اب ان کی تھوڑی عمر بھی ہو گئی ہے تو ہم کو مطلب ایسا کہ حضرت عمر سیریز کا نام ہے تو اتنا ہم کو, باقی آپ بہتر جانتے ہو, ٹھیک ہے, ہم کو تھوڑا بتا دینا, ٹھیک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور بتا دینا کہ اب قرآن نازل اور ہوئے گی یا ہو چکی ہے, کیا حساب ہے, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک بائے, سبسکرائب کرنا.